امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی حملوں میں کمی لانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی چینل سے گفتگو میں بتایا، کشیدگی میں کمی کے لیے 5 علاقائی ممالک نے رابطہ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے واضح الفاظ میں کہا، نہ نئی جنگ چاہتا ہوں نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ نتن یاہو پر واضح کیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پائے گا۔ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات۔ ایران کو چاہیے وہ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر اور اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے اپنے بیان میں کہا، ہم نعروں یا محض وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ایران اقتدار اور عقل مندی کے ساتھ ایک منصوبہ بند کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کالباف نے مزید کہا کہ فوجی محاذ، سفارتی محاذ، عوامی موجودگی کا محاذ اور عوام کی خدمت کا محاذ، یہ سب ایک ہی کپڑے کے ریشے ہیں۔ اگر ہم سفارتکاری کو صرف بند کمروں میں بات چیت اور سفارتی مسکراہٹوں تک محدود سمجھیں گے تو ہم آغاز ہی میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر امیر سعید روانی نے کہا کہ ایران اور امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان سے متعلق سلامتی کونسل اجلاس کے بعد روانی نے اپنے بیان میں کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے خیالات کے تبادلے کا عمل جاری ہے۔ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء پیش کر رہے ہیں اور ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے، تاہم ہم اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری امن مذاکرات میں آخری ہدف حاصل ہونے کے قریب ہے۔ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم نے کہا، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں حالیہ اضافہ اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کے کتنے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے برادر ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص ایسے وقت میں جب آخری ہدف بھی حاصل ہونے کے قریب ہے۔ ہم تمام فریقین سے مخلصانہ اپیل کرتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور امن کو ایک اور موقع دیں۔ وزیر اعظم نے کہا، آئے ہم امن اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں جس کے کامیاب ہونے کی روشن امکانات موجود ہیں۔ پاکستان نے طالبان سے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا سرحد پر دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور شدت پسند گروہوں کی سرگرمی پر شدید تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا، طالبان کے اقتدار میں آنے کے باوجود افغانستان مکمل امن اور استحکام کی جانب پیش رفت نہیں کر سکا، جبکہ دہشت گرد تنظیمیں اب بھی افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی، تجارت، سفارتی روابط اور علاقائی تعاون سمیت متعدد اقدامات کیے، تاہم طالبان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے مطابق ٹی ٹی پی، BLA، مجید برگیڈ، داعش، خراسان اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونا خطے کے لیے سنگین خطرہ بن چکا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات پر بھی بات چیت ہوئی، آزاد کشمیر کی صورتحال، امن و امان اور قومی اہمیت کے امور پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، بجٹ میں شرح ترقی، عوامی فلاح کی اسکیموں کو ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ دورہ ایران اور علاقائی سفارتی رابطوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ پاکستان نے آزاد جموں کشمیر پر غیر ضروری اور بے جا بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بعض برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے بیانات تاریخی پس منظر سے ناواقفیت کا مظہر ہیں۔ برطانیہ میں مقیم تارکین وطن کے بعض افراد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ایک خود مختار اور جمہوری ملک ہے، اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر شہریوں کے آئینی حقوق اور پرامن احتجاج کا مکمل احترام کرتی ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، معصوم شہریوں یا اہلکاروں کے قتل کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، برطانوی حکومت کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والے عناصر کو ایسے اقدامات سے روکے، آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے آئین و قانون کی بالادستی کا احترام کیا جائے۔
कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो कॉल लीक। होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। मंजर आम पर आने वाली ऑडियो कॉल में शौकत नवाज मीर ने कहा कि जब तक रावला कोट में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होती, हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं करवाएंगे। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। ख्वाजा महरान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज रावला कोट में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। इस पर शौकत नवाज मीर ने कहा कि मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि जब तक रावला कोट में पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लीक कॉल से वाज़ेह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मकसद पुरतशद्दुद हमले करके मज़मूम मकासद हासिल करना था। शौकत मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो कॉल से वाज़ेह है कि रावला कोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मंसूबाबंदी की जा रही थी। रावला कोट में कालादम अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा की नमाज जनाजा सिविल लाइंस रावला कोट में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर, IG पुलिस, आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। IG आजाद कश्मीर पुलिस ने कहा, पुरतशद्दुद अनासर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन अमान खराब करने की मजमूम कोशिश की। पुरतशद्दुद हमलों में पुलिस के 3 एहलकार शहीद और सिक्योरिटी फोर्सेज के 42 एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वराना तर्ज अमल से अमन अमान को बरकरार रखा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स का इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। कहा, तमाम अस्करी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान करते हैं। जनूबी लबनान और बैरूत के इलाके जाहिया में इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने सख्त और दर्दनाक रद्द अमल दिया। बयान में कहा गया कि ये ऐसा रद्द अमल है जिससे सिहोनी हुकूमत और इसके हामियों को सबक सीखना चाहिए। अगर जारहियत और मुजालिम का सिलसिला जारी रहा तो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन इक़दाम किए जाएंगे। हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। ईरानी कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे और किसी खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, सफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के 2 बाजू हैं। ना महाज छोड़ा और ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। ईरानी सदर ने कहा, दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। ईरान ने जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही बंद करे, सब कुछ अमेरिकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। अमेरिका और इसराइल से मुताल्लिक हमें पहले ही खदशात थे। इन दोनों की नीयत पर हमें पहले ही शक था। हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दाम को अमेरिकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि खित्ते में पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं, हम जंगबंदी के पाबंद थे। इस्माइल बकाई ने कहा, IAEA सरबराह जानबूझकर ईरान मुखालिफ रवैया अपनाए हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मजीद कहा, ईरान दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और खित्ते में जारी पेशरफ्त पर मुशावरत की। वज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने बरतानिया, फ्रांस और कतर के वज़राए ख़ारजा से भी राब्ते किए और इन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, कशीदगी में कमी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 9 निशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अब तक के गैर सरकारी और खैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में 7 निशस्तें आई, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 4 सीटों पर मैदान मारा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी एक उम्मीदवार कामयाब। पंजाब हुकूमत 16 जून को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। अवाम पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बजट की तैयारी में अवामी जरूरियात और तरजीहात को मद्देनजर रखा जा रहा है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा बजट से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने मसाइल और तजावीज पेश करने का मौका दिया गया, ताकि हकीकी मानों में अवामी बजट तश्कील लिया जा सके। उन्होंने बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 1,33,990 हाउसिंग कर्जे जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह सुथरा पंजाब प्रोग्राम का दायरा कार जिलाई और तहसील सतह से बढ़ाकर देहात तक वसी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इदारा जाती ताउन और हम आहंगी को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। मुलाकात में वफाक की तमाम इकाइयों के साथ रवाबत को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सियासी रहनुमा चौधरी निसार अली खान की रिहाइश का आमद।
खुश दामन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहुमा के लिए दुआए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र इस्तिकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान की इयादत भी की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। आवाम को मयारी और बेहतर सेहत सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, नर्सिंग के शोबे की तरक्की और बेहतरी के लिए मुअस्सर इक़दाम किए गए। हुकूमत नर्सिंग शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कौंसिल ऑर्डिनेंस के हवाले से बाज़ हलकों की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। ताहम इस ऑर्डिनेंस में चंद अहम इस्लाहात शामिल की हैं जिनका मकसद इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी ने तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि उनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना खित्ते में क्रिकेट के फरोग के लिए एक खुश आइंद पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है तमीम इकबाल की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खेल की तरक्की और बेहतरी के लिए मुअस्सर और मुस्बत किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली में एक और बड़ा कदम। एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म रेड लाइन की इफ्तिताही तकरीब। अदाकार शान, गुलाम मोहिउद्दीन, सैयद नूर, बाबरा शरीफ और मीरा की शिरकत। फिल्म के राइटर नासिर अदीब हैं जबकि हदायतकार गुलाम मोहिउद्दीन हैं। अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से जुदा हुए 15 बरस बीत गए। ड्रामा अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार उनकी पहचान बना। जमील फखरी ने फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। जमील फखरी को अपने फनी कैरियर में बेतहाशा कामयाबियां नसीब हुई, मगर आखिरी अय्याम में उन्हें अपने जवां साल बेटे की जुदाई का सदमा उठाना पड़ा और इस गम ने उन्हें ऐसा निढाल किया कि 9 जून 2011 को अपने खाल की हकीकी से जा मिले।